Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus. Thank you, King of Glory. Hallelujah. We bless your name, Lord. We magnify you, Jesus. Hallelujah. We glorify you, Lord Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus of Nazareth. Lord, we bless your name. Lord, we magnify you, we glorify you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. Lord, we come with adoration and appreciation and thanksgiving, gratitude and praise, Lord, and a song in our heart, Lord, to bless you. To bless you, Lord. Thank you for the light that shines in our heart. Thank you that the light that radiates our path. This is the light of your true word, Lord. Thank you, Lord, for shedding your true light on our path. And thank you for shining that brilliance right inside of our heart. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for protecting us in these evil times, in these dark days, Lord. Thank you for surrounding us with the angelic host. Thank you for the divine protection that is in the glorious blood of the Lamb. Thank you, Father. Thank you. Thank you for the deployment of the angels around us. Thank you, Lord, that the warring spirits wage war on our behalf. Thank you, Lord, for the illumination of the Holy Spirit on the inside of us, so that we are not deceived, so that we are not duped by the darkness, Lord, as the darkness is avalanching around the world. Lord, evil things are escalating in the earth. Murky is getting murkier. Dark is getting darker. Thank you, Father. Thank you for the high call that you placed upon us, placed upon our lives. Thank you for rescuing us from the vicious, evil clutches of the enemy. Thank you for translating us into the kingdom of your beloved Son, the Lord Jesus of Nazareth. You did not merely invite us into your kingdom as mere citizens, but you invited us into your kingdom as sons and daughters, and not only as sons and daughters, but with inheritance to inherit. Hallelujah. Lord, there will be people who will inherit the kingdom, and there will be people who will merely become the recipient of the kingdom. It depends on how people live their lives. It depends on how people use all the gifting, all the talent, all the potential, all the resources that you put at their disposal. How they engage their life each single day, and how they use their influence among men, how they use their resources, their wealth, their finances, their education, and how they live for you spiritually. Whether they live spiritually as firebrand believers, or they live a nominal, traditional, lukewarm life. Whether they live a real life or they live as hypocrites. And how they pose themselves, just externally, or they are true believers internally. What about their moral life? Do they overpower the lust of the flesh, the lust of the eye, the pride of life? Do they live a life of self-denial? Do they kill all the passions that wage war in their bodies for all kind of sensuality, immorality, fornication, debauchery? Do they love the Lord more than they love this material world? Do they love the Lord more than they love money? Hallelujah. प्रभु, ये बातें डिसाइड करेंगी कि आपके राज्य में, in the eternal kingdom, what position we will inherit,
whether we will be chancellors, governors, rulers. Jesus said, make him ruler over 10 cities, make another ruler over 5 cities. But the one who did not use what God gave him, but rather buried it, God said, take away everything from him. So there will be people in the kingdom of God, they will not receive any vital position to function. सोच लीजिए आप, बहुत से लोग होंगे जिनके पास कोई क्राउन नहीं होगा. बाइबल टॉक्स अबाउट 5 crowns. जीसस विल गिव द फेथफुल, लॉयल एंड दोज हु ओवरकम एंड दोज हु हैव बॉर्न फ्रूट. 3 बातें यीशु मसीह कहते हैं. ही दैट ओवरकम्स, ही हु इज फेथफुल एंड ही हु प्रोड्यूसेस मच फ्रूट. उनको क्राउन्स मिलेंगे. दे विल वेयर क्राउन्स इन द किंगडम. क्राउन्स सिग्निफाई द लेवल ऑफ अथॉरिटी, द लेवल ऑफ डोमिनियन. आपको मालूम, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज जो हैं, इनके ऊपर आपका रूल होगा. यू विल रूल दोज गैलेक्सीज. यू विल रूल द नेशंस, द गोएम, द नेशंस ऑफ द अर्थ. लेकिन ये डिपेंड करता है आप अभी कैसा जीवन जीते हैं. हालेलुया. किस तरह का जीवन आपका, प्रभु के लिए कैसा जीवन जी रहे हैं. स्वर्ग के राज्य में केवल प्रवेश ही नहीं करना है, स्वर्ग के राज्य को इनहेरिट करना है. हालेलुया. द लॉर्ड इज प्रिपेयरिंग अस फॉर द किंगशिप. होली स्पिरिट इज टीचिंग अस एंड फॉर्जिंग अस फॉर द रूलरशिप दैट इज reserved for us in the coming kingdom. Hallelujah. Thank you Jesus. तो भाइयों और बहनों, अपने रिसोर्सेज को, अपनी लाइफ को, अपने टाइम को, अपनी एजुकेशन को, अपनी इंटेलेक्ट को, अपनी इन्फ्लुएंस को, अपनी वेल्थ को, अपने रिसोर्सेज को प्रभु के लिए यूज़ करें. यूज़ देम फॉर द लॉर्ड. प्रभु की महिमा के लिए यूज़ करें. हालेलुया. थैंक यू जीसस. प्रभु आपका धन्यवाद हो, प्रभु आपकी महिमा हो. हालेलुया. यीशु मसीह आपकी स्तुति हो. आइए हम प्रार्थना करें. हम आज एक बड़ा अद्भुत संदेश सुनेंगे, सीखेंगे ईश्वर के वचन. तो मैं चाहता हूं भाई रजत, हिंदी इंग्लिश दोनों ही करना पड़ता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी हिंदी नहीं जानते, लाइन जो होते हैं, तो दोनों को मिलाना पड़ता है भाई. Hallelujah. Father, we pray in the holy name of Jesus that your Spirit will move upon this fellowship that we are having, Lord. That you will deploy the angels of heaven. प्रभु तू अपने जीवित कलाम को हमारे बीच में भेज. तेरे वचन के द्वारा तेरा दास चिताया जाता है. तेरा वचन तेरे दास की आंखों को रोशनी देता है. तेरा वचन हृदयों को इत्मीनान और तसल्ली देता है. प्रभु, हमारा इनवर्ड मैन एजुकेट हो. प्रभु, हम बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में यीशु मसीह के कद तक बढ़ें. लूका 2 की 52 वर्स में, जीसस ग्रू इन विजडम एंड इन स्टैचर. यीशु मसीह बुद्धि में बढ़ा और डील डॉल में. केवल डील डॉल में बढ़ने का कोई लाभ नहीं है. जीसस ग्रू इन विजडम. यीशु मसीह बुद्धि में बढ़ता गया, बलवंत होता गया स्वर्गीय बुद्धि में. बहुत सारे लोग डील डॉल में बढ़ते हैं, लेकिन उनके पास परमेश्वर की बुद्धि नहीं होती. याकूब
हमें आग्रह करके कहता है जिसे बुद्धि की कमी हो। मैं प्रतिदिन प्रभु से बुद्धि मांगता हूँ, क्योंकि मैं ये देखता हूँ अपने जीवन में कि मेरे जीवन में बुद्धि का अभाव है, बुद्धि की बहुत ज़्यादा कमी है। और मैं कभी अपने आप को बुद्धिमान क्लेम नहीं करता, प्रतिदिन प्रभु से बुद्धि मांगता हूँ। आप भी प्रभु से बुद्धि मांगिए। सबसे उत्तम आशीष स्वर्ग जो आपको मालूम, आपको क्या मांगना चाहिए? जो परमेश्वर आपको कह रहा है मांगो, वो मांगना चाहिए। जो परमेश्वर के महान संतों ने, दासों ने, नबियों ने, प्रेरितों ने मांगा, पढ़ के देखें वचन। जो जो प्रभु के अजीम लोगों ने मांगा वो आप भी मांगिए। ये दुर्भाग्य है कि यीशु मसीह के सुसमाचार को तोड़ मरोड़ दिया झूठे प्रचारकों ने, झूठे नबियों ने, झूठे प्रेरितों ने। जैसे यीशु मसीह के समय फरीसियों, सदूकियों, पुरोहितों और शास्त्रियों ने लोगों को यहोवा का कलाम नहीं सिखाया, बल्कि उन्होंने रब्बियों की तालीम सिखाई, ऑरल ट्रेडिशन सिखाए, ऑरल लॉ सिखाया, गमारा सिखाया, टैलमुड सिखाया, मिशना सिखाया। और मैंने आपको बताया उन्होंने यहोवा के कलाम को बाबुल में हलागा और हगाडा में बदल दिया। आज भी वही काम हो रहा है। आज भी झूठे नबी, झूठे प्रेरित परमेश्वर के लोगों को ठग रहे हैं, परमेश्वर के कलाम को तोड़ और मरोड़। आपको मालूम, परमेश्वर ने कहा, मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ, परमेश्वर कहता है अगर तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे, मेरे पीछे नहीं चलोगे और मेरी विधियों, मेरे हुक्मों को अपने हृदय में नहीं रखोगे, और प्रभु कहता है तुम क्या करोगे? बालीमों की पूजा करोगे, बाल की। बाल जो है सन गॉड है। और तुम अश्तोरेत की पूजा करोगे, ट्रीज की पूजा करोगे, ग्रोव्स की। और तुम आकाश के गणों की पूजा करोगे, प्लैनेट्स की पूजा करोगे। तो प्रभु क्या कहता है? मैं तलवार भेजूंगा, मैं अकाल भेजूंगा, मैं मरी भेजूंगा। 3 चीज़ें प्रभु कहता है। मैंने बार बार आपको इसके ऊपर शिक्षा दी है। तलवार, दूसरे लड़ाई भेजेगा, दूसरे राज्यों को आपके खिलाफ खड़ा करेगा, वो आपको लताड़ेंगे और मारेंगे, आपके राज्य पे आक्रमण करेंगे, प्रभु कहता है। फिर प्रभु कहता है मैं अकाल भेजूंगा, फिर प्रभु कहता है मैं मरी भेजूंगा। इस समय मरी चल रही है पृथ्वी पे। लोग कंफर्टेबल हो रहे हैं मरी के संग जीने के लिए। पहले हमारे राजनेता सिखा रहे थे लड़ाई करें, कोरोना के संग हम जंग करेंगे, जंग जीतेंगे। वो घंटियां बजवा रहे थे, थालियां बजवा रहे थे। लेकिन अब लोगों से कह रहे हैं कोरोना के संग जीना सीखो। संसार समझता जा रहा है, लेकिन फिर भी संसार परमेश्वर, जीवते परमेश्वर के चरणों में घुटने टेक के यीशु मसीह से विनती नहीं कर कि हमें क्षमा करें। ये बला नहीं जाने की, सुन लीजिए आप में, क्योंकि ये यहोवा परमेश्वर की ओर से भेजी गई है। इसलिए भेजी नबियों और झूठे प्रेरितों ने हलागा और हगाडा, गमारा, टैलमुड और मिशना कलाम को करप्ट करके सिखाया। और फिर प्रभु क्या कहता है इन 3 बलाओं के बाद? प्रभु कहता है अगर तुम फिर भी बाज नहीं आए तो मैं दूंगा बी। और हिंदी पंजाबी में जंतु लिखा है, लेकिन इसकी सही ट्रांसलेशन नहीं है जंतु। ये बीस्ट क्या है? बीस्ट क्या है? ये बीस्ट है शैतानी राज्य। दानियल नबी 4 बीस्ट को देखता है अपने दर्शन में, जो इज़राइल के विरुद्ध खड़े होते हैं। बाबुल मादी पारसियों का, मीड्स एंड पर्शियन का, असीरियन का, ग्रीक लोगों का, रोमन लोगों का। ये एम्पायर खड़ी होती हैं बीस्ट, इजरायलियों को सजा देने के लिए। यही है बाइबल के अंदर 4 घोड़े, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में। ये 4 घोड़े हैं, सुन लीजिए। जो पहले घोड़े पे बैठा आ रहा है वो बीस्ट है, जिसके हाथ में बो दी गई है वो, और दूसरा है उसके हाथ में तलवार है, वो सोर्ड है। प्रभु कहता है भेजूंगा। तीसरा जो तीसरा है उसके हाथ में काला घोड़ा है। वो बारले गेहूं का भाव बहुत महंगा हो गया है, चीजें
खाना पीना यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। प्रभु अपने कलाम को खोलिए। हालेलुया। खोलिए प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु आपका धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु। लोगों को आज्ञाकारिता से भरा हृदय दें। लॉर्ड, गिव अस हार्ट दैट विल रिसीव योर वर्ड। योर सर्वेंट James says in James 1:21, lay aside all superfluity and naughtiness of sin, and with great meekness receive the grafted word of God that is able to save your souls. Receive with humility the word of the Lord. प्रभु यहोवा कहता है, मैं यहोवा अति पवित्र पहाड़ पे विराजमान हूँ, पर मैं उसके संग भी रहता हूँ जो मेरे वचन को सुन के डरता और कांपता है। प्रभु अपने कलाम को भेज हमारे मध्य में। मैं एक एक जन पे तेरा लहू छिड़कता हूँ खुदावन। हालेलुया। एक एक जन पे तेरे खून की कुदरत को खोलता हूँ। तेरे लहू के साए में एक एक जन को छिपाता हूँ खुदावन, यीशु मसीह के जलाली नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। अगर आप थियोलॉजिकल कॉलेज में पढ़ने जाएं, डिग्री करने, BTH, MDiv, TH, TDH और जो भी डिग्रीज हैं, PhDs, तो बाइबल को सिखाने के लिए एक पद्धति है जिसे प्राचीन समय के जो चर्च फादर थे, जैसे ओरिजन, इग्नाइशियस, आइरेनियस, हिप्पो, सेंट अगस्टिन, फ्रांसिस, इन लोगों ने तैयार किया, जो जिनके ऊपर ग्रीक इन्फ्लुएंस ज़्यादा थी। परमेश्वर का कलाम हिब्राइक है, इब्रानी परिभेश में लिखा गया है, लेकिन जैसे यूनान की सभ्यता का ज़्यादा असर पड़ता गया, हिब्राइक पर्सपेक्टिव से धीरे धीरे कई अर्ली चर्च फादर ने बाइबल को अलग करने की कोशिश की। तो उन्होंने डिवाइस किया एक प्रिंसिपल जिसे थियोलॉजिकल भाषा में बोलते हैं हर्मेन्यूटिक्स। हर्मीज एक ग्रीक गॉड है, गॉड ऑफ विजडम, इंटेलेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। तो उसके नाम पे ये वर्ड बना है हर्मेन्यूटिक्स। हर्मेन्यूटिक्स का मतलब हाउ यू विल इंटरप्रेट द वर्ड, हाउ यू विल डू द एक्सेजेसिस। एक वचन को आप लेंगे, आयतों को लेंगे, उनमें से अर्थ कैसे निकालेंगे, वचन के एक हिस्से को दूसरे वचन के हिस्से के संग कैसे मिलाया जाएगा, कैसे वचन की हिब्रू में जाके, ग्रीक में जाके, लैटिन में जाके स्टडी की जाएगी, कैसे वचन को अलग अलग पर्सपेक्टिव में देखा जाएगा। मिसाल के तौर पे किसी एक स्क्रिप्चर वचन को लेके आप अध्ययन करेंगे कि इसके विषय में कलीसिया क्या मानती थी, पहली कलीसिया, प्रेरितों की कलीसिया। अगर कोई आपको हिस्टोरिकल ऐतिहासिक कोई दस्तावेज मिलेंगे तो आप उसका अध्ययन करेंगे। जो अर्ली चर्च फादर थे वो क्या मानते हैं इसके विषय में, फिर आप उसका अध्ययन करेंगे, उससे मिलान करेंगे। फिर आप कोई इसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ढूंढेंगे कि पुरातत्व विज्ञान में कोई ऐसी फाइंडिंग मिली है जो इन स्क्रिप्चर को वेरीफाई करती हैं। फिर आप उसके साइंटिफिक एंगल में जाएंगे कि साइंटिफिकली इस स्क्रिप्चर्स को कैसे प्रूव किया जाता है। तो ये सब बातों का मिलान करके फिर उसका हिस्टोरिकल एविडेंस देखा जाता है। फिर जो सेकुलर हिस्टोरियंस होते हैं, जैसे बहुत से ग्रीक सेकुलर हिस्टोरियन थे, एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस, हेरोडोटस, इन सब ने उन स्क्रिप्चर के विषय में कोई बात शेयर की है। तो इन सब चीज़ों को मिलान करने को हर्मेन्यूटिक्स बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इब्रानी ढंग है परमेश्वर के कलाम को समझने का, उसे मिद्राशिक बोलते हैं। मिद्राश 4 अलग अलग लेवल से परमेश्वर के कलाम को समझा जाता है। मैंने 2 महीने पहले शायद इसके ऊपर टीचिंग दी है। 4 अलग अलग कौन कौन से लेवल हैं हिब्रू, उनमें से 3rd लेवल है मिद्राशिक। तो कैसे वचन को हम समझेंगे, अभी मैं आज आपके आगे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी रख रहा हूँ। नहेमिया, एजरा, जरूब्बाबेल
ये तीन परमेश्वर के दास हैं, नहेमिया और जरूब्बाबिल। ये दोनों प्रीस्ट हैं, याजक हैं, याजकों के क्लैन से हैं, घराने से हैं, लेकिन ये फॉरेन लैंड में गुलामी में गए हैं और दूसरे देश के राजा की गवर्नमेंट में बहुत हाई प्रोफाइल पोजीशन पे हैं, जरूब्बाबिल भी और नहमाया भी। और उस समय दानियल नाम का एक प्रभु का अद्भुत दास है गुलामी में बाबुल की, जो परमेश्वर के नबियों की लिखतों का अध्ययन करता है। वो जर्मिया नबी की पुस्तक का अध्ययन करता है और जर्मिया नबी ने इज़राइल के लिए भविष्यवाणी की थी। जर्मिया और यशाया और इज़िकियल, ये तीन विख्यात परमेश्वर के नबी हैं, जिसमें से यशाया और जिर्मिया 40 साल तक नबूवत करता रहा। जैसे मान लो जिर्मिया आज नबूवत करना शुरू करे 2020 में, वो 40 साल नबूवत करता है 2060 तक। 2060 में नबूवतें पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। सच्चे नबियों की नबूवतें पूरी होती हैं। तो जर्मिया 40 साल वार्निंग देता रहा इज़राइल को कि गुलामी में तुम चले जाओगे, कैप्टिविटी आएगी, दूसरे देश का राजा आएगा, तुम्हें गुलाम बना के ले जाएगा, तुम यहोवा की ओर मुड़ो, तुम अपने बदकारी के काम छोड़ो, तुम बालीमों की और अश्तरोत की पूजा करनी छोड़ दो, तुम मोलेक की, किमोश की, दगोन की आराधना करनी छोड़ दो, तुम अश्तोरेत की पूजा करनी छोड़ दो, तुम प्लैनेट्स की उपासना करनी छोड़ो, यहोवा की ओर मुड़ो। लेकिन उन्होंने यहोवा के दास की बातें नहीं मानी। यशाया जिर्मिया से पहले भी भविष्यवाणी, सबसे लंबे काल में यशाया ने भविष्यवाणियाँ की हैं। वो भविष्यवाणी जब कर रहा था तो मनस्से एक बहुत बुरा राजा था, जो कि यहोशाफाट का बेटा था, हिजकिया राजा का बेटा था, जिसकी उम्र यहोवा ने 15 साल बढ़ा दी थी। और जब उसकी उम्र बढ़ाई गई, उसी दौरान उसके ये बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम था मनस्से। इज़राइल का सबसे बुरा राजा था वो। उसके विषय में मैं आपसे फिर बात करूंगा किसी और मैसेज में। उसने परमेश्वर के दास यशाया को आरे से चिरवा दिया था, सेंटर में से। तो जर्मिया, यशाया, इज़िकियल इनमें से सबसे जवान है। दानियल जो है वो इज़िकियल से बड़ा है, लेकिन दानियल को नबूकदनसर गुलामी में ले गया है। नबूकदनसर 3 बार इसराइलियों को गुलामी में लेके गया, यहूदा और बेंजामिन और लेवियों के गोत्र को 3 बार। जिर्मिया पीछे था, जिर्मिया भविष्यवाणी करता रहा। जिर्मिया जब नबूकदनसर ले गया गुलामी में, मैंने आपको मैसेज दिया था, यहकोनाया उस राजा का नाम था। यहोवा उससे घृणा करने लगा उसकी बदकारी के बुरे कामों के कारण, और यहोवा कहता है मैं अपना नाम तेरे से वापस लेता हूँ, और उसका नाम कोनाया रह गया। याह ने अपना नाम उससे वापस ले लिया और वो गुलामी में चला गया। जिर्मिया पीछे रहा और उन्होंने जिदकिया को, जो उसका चाचा था, उसको राजा बना दिया उसकी जगह में। वो राजा नहीं इज़राइल का, उसे वासल किंग बोलते हैं। वासल किंग जैसे दूसरे देश के राजा अपने किसी फेवरेट को बिठा देते हैं राज करने के लिए, इसी तरह रोमियो ने हेरोदेस को राजा बनाया था। हेरोदेस यहोवा का बनाया राजा नहीं था, हेरोदेस अदोमी था, वो यहूदी नहीं था। ऐसे ही जदिकिया को राजा बना दिया गया। तो जिर्मिया नबूवत करके कहता है जदिकिया को और इज़राइल को कि तुम नबूकदनसर के अधीन हो जाओ। तो उस समय झूठे नबी नबूवतें कर रहे थे। जदिकिया राजा के पैलेस में, इज़राइल के राजा अपने पैलेस में, अपने महल में नबी रखते थे। कुछ नबियों को सरकारी ट्रेजरी से बहुत सारा पैसा दिया जाता था। ये नबी झूठे नबी थे, और ये ज़िदकिया को क्या सलाह देते थे कि तू टैक्स देना बंद कर दे। ज़िदकिया को राजा बना के गया था बाबुल का राजा नबूकदनसर, और वो चाहता था कि इज़राइल से टैक्स लिया जाए और गिफ्ट इकट्ठे किए जाएं और बाबुल भेजे जाएं। लेकिन ज़िदकिया ने वो देने बंद कर दिए झूठे नबियों की सलाह मान के, जबकि जिर्मिया ये कहता था कि राजा के अधीन हो जाओ और उसे टैक्स देते रहो। तो झूठे नबी कहते थे ये यहोवा का नबी हो ही नहीं सकता जिर्मिया,
ये तो हमें अन्य जाति के लोगों के अधीन होना सिखा रहा है। हम यहोवा के हैं, यहोवा हमारे लिए लड़ेगा। आज भी बहुत सारे लोग पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। God is going to bless you, God is going to anoint you, God is going to make a new way for you, the great blessing is coming upon you, great breakthrough is coming upon you, great financial blessing। मैं बता रहा हूँ भाइयों और बहनों, इस समय यहोवा का क्रोध पृथ्वी पे चल रहा है, और ऐसी झूठी नबूवतें करनी बंद कर दीजिए। लोगों को झूठी आशा देनी बंद कीजिए। लोगों को आह्वान कीजिए कि यहोवा के चरणों में बिछ जाओ और अपने गंदे काम, अपना अधर्म, अपने अंदर के लुच्चपने को त्याग दो, ताकि यहोवा तुम पे दया करे। सच्चा कलाम प्रचार करो। पॉजिटिव करके लोगों को ठगने की कोशिश मत करो। यिर्मयाह जो प्रचार करता था, झूठे नबी उसे झूठा मानते थे और झूठे नबी अपने आप को सच्चा बोलते थे। 3 बार नबूकदनेस्सर आया, 2 बार लूट के ले गया, तीसरी बार मुकम्मल तौर पे यरूशलेम की हैकल को लूट के ले गया। सब कुछ, सोना चांदी, हीरे मोती जवाहरात, सब कुछ लूट के ले गया। और इज़िकियल भी संग में चला गया गुलामी में। दानियल वहां पे ऑलरेडी परमेश्वर के चरणों में भविष्य वक्ताओं की किताबें पढ़ रहा है। आपको मालूम नबी कौन होता है? नबी वो ही नहीं होता जो कहता आ रहा हूँ, काले रंग का गेट है, फलाना है, खड़ी हो जा काले रंग के सूट वाली बहन, तेरे ये हो रहा। ये सब फाल हैं, जादू टूने की आत्माएं हैं। अगर वो बंदा जिन्युइनली अनॉइंटेड है तो अलग बात है, लेकिन ये ज़्यादा जादू टूना और भावी कहने की रूहें हैं। आपको मालूम सच्चा नबी कौन है? सच्चा नबी वो है जिसे नबियों की किताबों का पता है। यिर्मयाह क्या कह रहा है, हज्जई क्या कह रहा है, जकरिया क्या कह रहा है, उबदाया क्या कह रहा है, जोना क्या कह रहा है, नहूम क्या कह रहा है, हबक्कुक क्या कह रहा है। इन नबियों की किताबों को पढ़ के वो आपको नक्शा दिखाएंगे कि आप कहाँ खड़े हो और कहाँ जा रहे हो और ये दुनिया में क्या घट रहा है। ये होते हैं नबी। तो अगर आप पढ़ेंगे नहमीया की पुस्तक और एजरा की पुस्तक, दोनों किताबें आप पढ़ें, नहमीया और एजरा की पुस्तक, और इसके संग आप पढ़ें हज्जई नबी की पुस्तक। ये तीनों किताबें एक डायरेक्शन में लेके जा रही हैं हमें। नहमीया, एजरा और हज्जई नबी की पुस्तक है गाय, ये हमें एक डायरेक्शन में लेकर जा रही हैं, तीनों की तीनों किताबें। और ये तीनों की तीनों किताबें हमें नैरेटिव दे रही हैं हिस्ट्री का, इज़राइल का इतिहास बता रही हैं। इज़राइल के अंदर उस समय कौन सा मसला चल रहा है, क्योंकि एजरा, नहमीया और ज़रूब्बाबिल, ये 3 खुदा के अजीम बंदे ये इसराइलियों को वापस लेकर आए हैं। 3 जत्थों में इज़राइली लोग जो हैं वो बाबुल से वापस लौटे हैं। 3 जत्थों में वो अब पर्शियन किंगडम के अधीन है, क्योंकि बाबुल को पर्शिया ने हरा दिया है, पर्शियन किंगडम ने हरा दिया है। तो यहूदा जो है, यहूदा को 4 डिक्रीज मिली हैं। राजा ने 4 डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करके दिया और ये 4 बार लौटे हैं यहूदा गोत्र के, यहूदा, बेंजामिन और लावियों के गोत्र के। लेकिन जो ऊपर के नॉर्दर्न किंगडम के 10 गोत्र थे जो अशूर में गुलामी में गए, उन्हें कोई डिक्री वापस नहीं मिली थी। तो ये वापस लौटते हैं एजरा और नहमीया और ज़रूब्बाबिल। ज़रूब्बाबिल याजक है, वो परमेश्वर की हैकल को बनाने का काम कर रहा है। नहमीया शहर पनाह को बना रहा है यरूशलेम की, और एजरा जो है वो स्क्राइब है, वो याजकों को शुद्ध कर रहा है। इज़राइल में जो पीछे लोग रह गए 70 साल, उन्होंने, याजकों ने अपने आप को करप्ट कर लिया, अपवित्र कर लिया। उन्होंने अन्य जाति की स्त्रियों के संग शादियां कर ली और कई याजकों ने कई औरतें रख ली थी, और वो बहुत ही गलत किस्म का नैतिक जीवन जी रहे थे। अब परमेश्वर की हैकल को बनाने का समय आया है, परमेश्वर के शहर की शहरपनाह खड़ा करने का समय आया है, याजकों के शुद्धिकरण का समय है। तो एजरा की पुस्तक पढ़िएगा आप, 9 अध्याय, वहाँ पे एजरा जाके रोता है प्रभु के आगे, क्योंकि हर एक याजक अपवित्र हो चुका है। अन्य जाति की बहुत सी औरतें रख ली हैं उन्होंने, और जनाकारी से और हर तरह की दुष्टता से भरा हुआ जीवन वो जी रहे हैं। तो प्रभु का बंदा उन्हें यहोवा का बड़ा सख्त कलाम देता है
और उनका शुद्धिकरण करता है, और वो उन औरतों को त्याग पत्र देते हैं, उनको छोड़ते हैं, परित्याग करते हैं। फिर वो उनका शुद्धिकरण करता है, उनको पवित्र किया जाए, उन्हें कॉन्सिक्रेट किया जाए, यहोवा के लिए मखसूस किया जाए, ताकि वो फिर से यहोवा की सेवा करने पाएँ। मिक्स ब्लड कभी यहोवा की सेवा नहीं कर सकता। परमेश्वर को शुद्ध लाइन चाहिए, लिनेज चाहिए उसकी सेवा के लिए। लेकिन अगर आप मलाकी की किताब पढ़ेंगे तो उसमें से कुछ याजक इतने करप्ट हैं कि उनकी जो यहूदी औरतें हैं, जो उनकी पहली औरतें थी यहूदी, वो उनको भी त्याग पत्र दे रहे हैं। इसलिए मलाकी नबी कहता है कि यहोवा तलाक से घृणा करता है। वो तेरी जवानी की साथी थी, अब अगर वो बूढ़ी हो गई है तो तू उसे त्याग पत्र मत दे। तो मलाकी नबी जो है वो भी इसी समय की बात कर रहा है। हज्जई, मलाकी, जकरिया नबी, जरूबाबेल, एजरा, नहेमिया, ये सब एक ही समय के नबी हैं। और जो हिजकियल है वो भी असीरी में है और दानियल भी असीरी में है। तो समझिए पूरी तस्वीर को कि पूरी तस्वीर क्या है। तो एजरा और नहेमिया जब ये प्रभु का काम कर रहे हैं तो इनको बड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। किनसे? पढ़िए, एजरा और नहेमिया की पुस्तक आप पढ़िएगा। सनबलाट नाम का एक गवर्नर है जो इजरायलियों को परमेश्वर के काम करने में रुकावट डाल रहा है। और दूसरा है तोबिया दी हॉर्नाइट। तोबिया हॉर्नाइट एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के काम में अड़ंगा डाल रहा है। और तीसरा वचन में लिखा है अरबी लोग हैं जो परमेश्वर के काम को नहीं होने देना चाहते, परमेश्वर के काम को रोक रहे हैं। वो दीवार बनाते हैं और वो दीवार आके तोड़ देते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि वो एक हाथ में हथियार लेते हैं और दूसरे हाथ में मिस्त्री की कांडी लेके वो शहरपनाह को बना रहे हैं। तो अगर आप पढ़ेंगे, जरूब्बाबेल जो है वो अपने जोर से, अपनी ताकत से प्रभु के काम को करना चाहता है। उसके अंदर अगन है, जलन है प्रभु के लिए। तो प्रभु जकरिया नबी को वचन दे के क्या कहता है? जकरिया 4:4 में प्रभु का आत्मा कहता है कि जरूब्बाबेल से ये कहे कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ क्या है? बाइबल में जहाँ पहाड़ शब्द आता है उसका मतलब है शैतानी किंगडम, शैतानी बादशाही, शैतान का विरोध, शैतान की गवर्नमेंट। पहाड़ पे उसकी शैतानी गवर्नमेंट बैठती है। प्रभु यहोवा कहता है ये काम मेरे रूह के द्वारा होगा, शारीरिक बल के द्वारा नहीं होगा। कई बार मसीह लोग अपने शारीरिक बल से काम करना चाहते हैं, शारीरिक संगठन बना लेते हैं, पास्टर एसोसिएशन बना लें, वो एसोसिएशन बना लें, फलाना समाज का रजिस्ट्रेशन करा लें, फलाना समाज बना के रजिस्ट्रेशन करा लें। ऐसे प्रभु के काम नहीं होते। प्रभु के काम पवित्र आत्मा के ज़ोर से होते हैं, पवित्र आत्मा की कुदरत, पवित्र आत्मा की कुव्वत के द्वारा होते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, एजरा और नहेमिया और हज्जई नबी, मैं आपको एक वचन देता हूँ, दूसरा अध्याय निकालें हज्जई नबी का, हैगाय, प्रॉफिट हैगाय। अगर आप मलाकी से पीछे की ओर जाएंगे, मलाकी से पीछे की ओर चले जाएं तो जकरिया के बाद आपको हज्जई नबी मिलेगा। हज्जई नबी जो है ये नबूवत कर रहा है जब जरूब्बाबेल और नहेमिया परमेश्वर की हैकल को और शहरपनाह को बना रहे हैं। तो अब इसके दूसरे अध्याय में आपको कुछ वचन देना चाहता हूँ। इन द 7th month एंड इन द 20th day of the month came the word of the Lord by prophet Haggai। 7वें महीने के 12वें दिन यहोवा का कलाम आया हज्जई नबी के पास। क्या आया? स्पीक नाउ टू जरूब्बाबेल द सन ऑफ शीयल्तिएल गवर्नर ऑफ जूडा एंड टू जाशुआ द सन ऑफ जोसिडेक द हाई प्रीस्ट एंड टू द रेजिड्यू ऑफ द पीपल सेइंग। अब देखें ध्यान से, जो यहोशू है वो उस समय महायाजक है, जरूब्बाबेल भी याजक है, लेकिन जरूब्बाबेल हैकल को बनाने का काम कर रहा है और एजरा परमेश्वर के याजकों की लिस्ट बना रहा है।
और परमेश्वर के याजकों का शुद्धिकरण कर रहा है। जिन्होंने अन्य जाति की औरतें ब्याही हैं उन्हें शुद्ध कर रहा है और उन्हें प्रभु के लिए मखसूस कर रहा है, मसा कर रहा है। वो याजकों को तैयार करने में लगा है। और नहेमिया शहर पनाह बना रहा है, ज़रुब्बाबेल हैकल को बना रहा है, और यहाँ पे एक याजक है जिसका नाम है जोशुआ, हाई प्रीस्ट है वो। तो इनके लिए यहोवा का कलाम क्या आता है, हु इज़ लेफ्ट अमंग यू दैट सॉ द हाउस इन हर फर्स्ट ग्लोरी। अब क्या है, सुने ध्यान से। परमेश्वर की, यहोवा की हैकल बना दी गई है, हैकल बन गई है। ज़रुब्बाबेल और नहेमिया, एज़रा, इन्होंने मिलकर यहोवा की हैकल बनाई है। जो लोग इनके संग लौटे उन्होंने मेहनत करके प्रभु की हैकल बनाई। जब प्रभु की हैकल बन गई, जो हैकल ज़रुब्बाबेल, एज़रा और नहेमिया ने बनाई है, पहले वाली हैकल जो सुलेमान ने बनाई थी वो लुट गई, वो रेज कर दी, बिल्कुल उसका मलबा भी मिटा दिया, सब कुछ लूट के ले गया नबूकदनेस्सर। अब ये नई हैकल बनी है, लेकिन जो सुलेमान ने हैकल बनाई थी वो इतनी आलीशान थी, इतनी अद्भुत थी। आपको मालूम, मैंने उसका पूरा अध्ययन किया, बहुत समय मैंने रिसर्च की सुलेमान की हैकल के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुलेमान की हैकल के ऊपर अगर हम सारी कैलकुलेशन करेंगे, सारी की सारी कैलकुलेशन करेंगे, तो सुलेमान की हैकल में, सुनिए ध्यान से, 36,74,180.25 किलो सोना लगा है। कितना? 76,74,180.25 किलो सोना उस हैकल में लगा है। और चांदी कितनी लगी है? उसके अंदर चांदी लगी है 3,45,97,729 किलो, 29.8 किलो, ये इतनी चांदी लगी है। अब आपको मैं कुछ हवाले दे देता हूँ, पढ़ लीजिए प्लीज़, लिखिए ये हवाले, इन हवालों को लिखिए प्लीज़। सबसे पहले लिखिए पहला इतिहास 24 अध्याय, पहला इतिहास 22 अध्याय का 14 वचन। पहला इतिहास 22 अध्याय उसका 14 वचन। बहुत अद्भुत जानकारी आपको दे रहा हूँ परमेश्वर के कलाम में से, और ये सब मैं आपको प्रभु के वचन में से इसके हवाले देता हूँ। पढ़िए पहला इतिहास उसका 24 अध्याय और उसका 14 वचन। प्लीज़ टाइप करते जाएं, कोई हिंदी में आयत निकाल के लिखते जाएं, हिंदी या इंग्लिश में। पहला इतिहास उसका 22 अध्याय और उसका 14 वचन। पहला इतिहास 22 अध्याय का 14 वचन आपके लिए पढ़ता हूँ, सुने। पहला इतिहास 22 का 14, सुनिएगा। Now behold, in my trouble I have prepared for the house of the Lord 100,000 talent of gold, and 1,000 talent of silver, and of brass and iron without weight. For it is in abundance. Timber also and the stone have I prepared, that thou mayest add thereto. राजा दाऊद क्या कह रहा है अपने बेटे को? राजा दाऊद प्रभु के पास जाने वाला है। राजा दाऊद अपने बेटे को अध्यादेश दे रहा है कि प्रभु यहोवा के लिए आलीशान हैकल बनाना है। और क्या कह रहा है कि देख, मैंने अपने दुखों के दिनों में यहोवा परमेश्वर के घर के लिए क्या किया है? 100,000 टैलेंट ऑफ गोल्ड, 1,00,000 टैलेंट गोल्ड, 1,00,000 टैलेंट, 1,00,000 तालेंट लिखा होगा आपकी बाइबल में, 1,00,000 टैलेंट मैंने सोना रखा है। आपको मालूम एक टैलेंट कितना होता है? एक टैलेंट होता है 75 पाउंड का, और एक टैलेंट का बनता है 34.0194 किलो। 34 किलो रख लीजिए, रख लिया आप, 34.0194 किलो एक टैलेंट होता है। तो ये सोना जो अलग से रखा गया है, ये टोटल है 1,08,002.5 टैलेंट गोल्ड है ये, और ये गोल्ड बन जाता है 36,74,180.25 किलो। देखें, सोने की सिर्फ झाल नहीं चढ़ी है, पत्थरा नहीं चढ़ा है,
तोड़ो तोड़ी सोना है, दीवारें अंदर बाहर खालिस सोने की हैं। देख रहे हैं आप, ये जो टैलेंट है किकार, 10 लाख किकार, ये पढ़िए किकार कितना होता है। 1 लाख किकार होता है 34 किलो का एक किकार होता है, और 1,34.0194 किलो का एक किकार होता है। और चांदी कितनी है? 10 लाख किकार है। सोने से 10 गुना ज़्यादा चांदी है, जो राजा दाऊद ने यहोवा के भवन के लिए अलग करके रखी है। और अब पढ़ें एक और वचन, पढ़िए पहला इतिहास, जल्दी से निकालें, 1 क्रॉनिकल्स और उसका 29 अध्याय। पहला इतिहास का 29 अध्याय और उसका 3 वचन पढ़ें। पहला इतिहास 29 अध्याय का 3 वचन सुने क्या कहता है प्रभु का दास। Moreover, because I have set my affection on the house of God, I have my own proper good of gold and silver, which I have given to the house of my God over and above all that I have prepared for the house of God. राजा दाऊद क्या कहता है? सुन लो ध्यान से, क्यों राजा दाऊद प्रभु के दिल के मुआफिक है। राजा दाऊद अपने बेटे सुलेमान से कहता है, क्या कहता है? मैंने आपको बताया अभी, ये आपको मैंने आंकड़ा दिया कि 1 लाख टैलेंट किकार सोना है, 10 लाख टैलेंट किकार चांदी है, और पीतल और जो तांबा है उसको कोई तोल नहीं सकता, इतना है। लोहा पीतल तांबे को तोला नहीं जा सकता, इतना राजा दाऊद ने प्रभु के लिए इकट्ठा किया है। 1,08,000 2.5 टैलेंट किकार है ये, और ये एक टैलेंट, एक किकार 75 पाउंड का होता है, 34.0194 किलो का। 36,74,180.25 किलो सोना है। 36,74,180 किलो .25, इतना सोना है जो राजा दाऊद ने इकट्ठा किया है। और चांदी कितनी है? चांदी है 3,45,97,729.8 किलो। देख लीजिए भाई और बहनों, 34,597.7298 टन। 34,000। आपको मालूम कितनी गाड़ियां भर जाएंगी, ट्रक कितने भरेंगे अगर 20 टन सोना डाला जाए एक में? 400 के करीब ट्रक भर जाएंगे चांदी के, जो यहोवा के भवन में लगी है। और आप हिसाब लगा लीजिए, कम से कम 125 ट्रक सोने का भर जाएगा जो यहोवा के घर में। ये राजा दाऊद ने जो भी इकट्ठा किया, लड़ाई युद्ध किए, सब जो इकट्ठा किया वो सब यहोवा के भवन के लिए रखा है। अब 29, पहला इतिहास 29 का 3 वचन पढ़ें। यहाँ क्या कहता है? मोर ओवर बिकॉज आई हैव सेट माई अफेक्शन टू द हाउस ऑफ माई गॉड। कहता मैंने अपना दिल लगाया था, मेरा दिल लगा था कि मेरे परमेश्वर का भवन बने। आई हैव ऑफ माई ओन, मैंने जो अपना पर्सनल, जो मेरा है, मेरा हिस्सा। राजा दाऊद आपको मालूम कैसा खुदा का खादिम है, कैसा गडरिया है। इसने पर्सनली भी प्रभु को दिया है, वो तो इकट्ठा किया है पर अपने पास से दे रहा है। बहुत सारे सेवक जो हैं, पासवान जो हैं, वो दूसरों को ही कहते हैं दो आप प्रभु के काम के लिए, अपने आप से कुछ नहीं देते कभी। राजा दाऊद से सीखिए। राजा दाऊद कहता है मैंने अपना खुद का क्या किया है? आई हैव माई ओन प्रॉपर गुड गोल्ड and silver which I have given to the house of my God over and above all that I have prepared for the holy house। कितना है ये? even 3,000 talent of gold। 3,000 टैलेंट गोल्ड राजा दाऊद का पर्सनल है। 3,000 टैलेंट, ये कितना बनता है? कितना बनता है? 3,000 टैलेंट कितना बनता है? इसको 34 से गुना कर दीजिए। 3,000 को 34 से गुना कर दीजिए। ये बन रहा है आपके, ये बन रहा है 1,02,058.2 किलो। 1,02,058.2 किलो। 1 लाख किलो से ज़्यादा सोना राजा दाऊद खुद दे रहा है।
क्या कहता है? और ये गोल्ड कौन सा है? 3000 टैलेंट गोल्ड है, ओफीर का सोना है खालिस, ये 24 कैरेट से भी ज़्यादा कीमती है। 7000 टैलेंट ऑफ गोल्ड, और सोने से 1 लाख किलो सोना है, और लगभग 2.5 लाख किलो 3 लाख किलो के करीब चांदी है, जो प्रभु के घर की दीवारों के लिए दे रहा है। द गोल्ड फॉर द थिंग्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर फॉर द थिंग्स ऑफ सिल्वर, फॉर ऑल मैनर ऑफ वर्क टू बी मेड बाय द हैंड ऑफ द आर्टिफिसर्स, एंड हु देन इज विलिंग टू कॉन्सिक्रेट हिज सर्विस दिस डे अनटू द लॉर्ड। ये राजा दाऊद की पर्सनल प्रभु को भेंट है। देख रहे हैं आप? अब आप पढ़िए एक और वचन, दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसका 5 वचन पढ़े। दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसका 5 वचन, लिखते जाएं बीच में। दूसरा इतिहास 7 का 5 पढ़ें जल्दी से, प्लीज़ टाइप कर दीजिए। दूसरा इतिहास 7 का 5 टाइप कीजिएगा। दूसरा इतिहास 7 का 5। पढ़ रहे हैं आप? दूसरा इतिहास 7 का 5 मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, हिंदी में लिख दीजिए। दूसरा इतिहास 7 का 5 सुने। एंड किंग सोलोमन ऑफर्ड अ सैक्रिफाइस ऑफ 20 and 2000 ऑक्सन। कितने हो गए? हिंदी में क्या लिखा है? पढ़िए। 20 and 2000 ऑक्सन एंड 120,000 शीप। क्या लिखा है? 22,000 बैल हैं जो यहोवा को चढ़ाए गए हैं, और 1,20,000 भेड़ें। जब ये आलीशान हैकल बन गई तो 22,000 बैल, चुने हुए तगड़े रिष्ट पुष्ट बैल, 22,000 बैलों को बांधने के लिए आपको मालूम कितनी बड़ी जगह चाहिए? एक बहुत बड़ा सॉकर का ग्राउंड चाहिए 22,000 बैलों को बांधने के लिए, और 1,20,000 भेड़ों को बांधने के लिए। 1,20,000 भेड़ें, 22,000 बैल एक ही बार चढ़ा दिए गए, एक ही बार उनको ज़िबा कर दिया गया। फिर पढ़ लें पहला राजा उसका 8 अध्याय 63 वचन। एंड सोलोमन ऑफर्ड अ सैक्रिफाइस ऑफ पीस ऑफरिंग विच ही ऑफर्ड अनटू द लॉर्ड 220,000 oxen and 120,000 sheep. So the king and all the children of Israel dedicated the house of the Lord. 22,000 बैल भाइयों और बहनों चढ़ाए हैं, 1,20,000 भेड़ें एक ही बार कुर्बान की हैं यहोवा के लिए। और ये आलीशान सोने की हैकल है जो खुदावंद के लिए, आपको मालूम, मैंने ये इसके अलावा पीतल और जो तांबा है वो अनतोल है, लोहा अनतोल है, लोहे को कोई तोल नहीं पाया, और पीतल और तांबे को तोल नहीं पाया। और इसके अलावा बेशकीमती हाथी के दांत का काम किया गया है, और बेशकीमती जानवरों की खालें लगी हैं हैकल के अंदर। और इसके अलावा पूरी दुनिया से लाए गए कीमती हीरे, मोती, जवाहरात यहोवा की हैकल में जड़े हैं। पहला राजा 5 का 10 पढ़ेंगे। हिराम राजा ने बेशकीमती लेबनोन की लकड़ी भेजी है, बेशकीमती लकड़ी, ये यहोवा की हैकल के अंदर लगाई गई है। यहोवा की हैकल को बनाने के लिए हज़ारों हजार लोग लगे रहे। पहला राजा 9 अध्याय का 10 वचन पढ़ेंगे। ऑल टुगेदर 20 साल लगे, लेकिन अकेली हैकल को बनाने में 13 साल लग गए। इतनी आलीशान हैकल, मैंने इसकी कैलकुलेशन की, 286.4 बिलियन, 286.4 बिलियन US डॉलर चाहिए इसे बनाने के लिए। आज अगर आज ये हैकल बनानी हो 286.4 बिलियन डॉलर चाहिए भाइयों और बहनों। हमारे देश का सबसे अमीर आदमी है मुकेश अंबानी, उसकी कुल प्रॉपर्टी सब कुछ जो है ना उसका, वो 100 बिलियन से नीचे है, 86 या 88 बिलियन है। जेफ बेओज जो सबसे अमीर आदमी है दुनिया का, अमेज़ॉन का मालिक, उसके पास 110 बिलियन है। अगर अंबानी भी सारा पैसा दे दे, जेफ बेओज भी सारा पैसा दे दे, तो भी आपको बिल गेट्स का पैसा चाहिए इस हैकल को बनाने के लिए।
ऐसी खूबसूरत हैकल बनी यहोवा के लिए, और लेविश कुर्बानियाँ दी गई। 1,20,000 भेड़ें और 22,000 बैल एक ही बार यहोवा को चढ़ा दिए। यहोवा से प्यार करने वाले बंदे, भाई और बहनों, बंद मुट्ठी वाले लोग नहीं हैं। मसीह लोग बंद मुट्ठी वाले हैं बहुत से। उनको आत्मा कहता है कि प्रभु के लिए बीज, फिर भी नहीं बीजते। क्यों? क्योंकि जिस दिल की जिस जगह पे यीशु मसीह को बैठे होना चाहिए, उस जगह पे पैसा दौलत बैठी है, और दौलत का प्यार बैठा हुआ है। राजा दाऊद परमेश्वर के दिल के मुआफिक इंसान इसलिए है। हालेलुया। 1,02,058 किलो सोना अपनी तरफ से देता है, और 3 लाख किलो से ज़्यादा चांदी अपने पास से देता है राजा दाऊद, पर्सनल। हालेलुया। ये हैं सच्चे गडरिये यहोवा के। ऐसी आलीशान हैकल बनाई गई थी। अब वो हैकल को लूट के ले गया नबूकदनेस्सर। अब 70 साल के बाद इस्राएली लोग लौट के आए हैं, और जब ये हैकल बनाई गई, 1,20,000 भेड़ों की, 22,000 बैलों की कुर्बानी दी गई, उसी समय खुदा का जलाल हैकल में उतर आया। पूरी हैकल यहोवा के जलाल से भर गई। कोई भी याजक खड़ा नहीं हो पाया। 5,000 से ज़्यादा उस समय यहोवा की हैकल में याजक लोग थे, जो परमेश्वर के सन्मुख खड़े स्तुति कर रहे थे, भेंटें चढ़ा रहे थे। लेकिन कलाम बताता है कि कोई भी खड़ा नहीं रह पाया, सब नीचे गिर गए। ऐसा जलाल यहोवा का हैकल में उतर आया। ऐसी आलीशान हैकल को इजरायलियों ने देखा, और यहोवा ने कहा कि मेरी आँख इस जगह लगी रहेगी, जो प्रार्थना यहाँ से होगी मैं सुनूंगा। यहोवा परमेश्वर ने वादा किया। ऐसी मनोहर खूबसूरत हैकल थी वो, जिसे नबूकदनेस्सर लूट के ले गया। अब प्रभु के बंदे फिर आए हैं 70 साल के बाद। ज़रूब्बाबेल, इज़रा, नहमिया, फिर हैकल बना दी गई है। अब देखें क्या हो रहा है। हज्जाई नबी की पुस्तक 2 अध्याय में, इन द 7th month, 7वें महीने के 12वें दिन क्या हुआ? यहोवा का कलाम आया। किसके पास? हज्जाई नबी के पास। किसके लिए? ज़रूब्बाबेल के लिए, और जोशुआ जो खुदा का याजक उसके लिए। तो क्या कहता है प्रभु? प्रभु कहता है हु इज़ लेफ्ट अमंग यू दैट सॉ दिस हाउस इन आवर फॉर्मर ग्लोरी। कहता है तुम्हारे में कौन है जिसने इस हैकल को पहले जलाल में देखा है। ये जो भीड़ आई है ना यहाँ पे, दूसरी जो हैकल है जो इज़रा, नहमिया और ज़रूब्बाबेल ने बनाई है, इस हैकल को मखसूस किया जा रहा है, डेडिकेट किया जा रहा है। जब इस हैकल को यहोवा के लिए मखसूस किया जा रहा है, डेडिकेट किया जा रहा है, तो ये हैकल, ये टेम्पल, ये खुदा का मशकन, ये खुदा का मकदस जो है, सुलेमान की हैकल के सामने कुछ भी नहीं है। वो इतनी आलीशान हैकल है, ये हैकल कुछ भी नहीं उसके आगे, साधारण सी हैकल है ये। तो प्रभु कहता है कि पहली हैकल का जलाल तुमने देखा है, एंड हाउ डू ई सी इट नाउ। अब तुम कैसे देखते हो? इज इट नॉट इन योर आईज इन कंपेरिजन ऑफ इट एज नथिंग। क्या ये हैकल सुलेमान की हैकल के सामने कुछ भी नहीं है ना? Yet now be strong, O Zerubbabel. फिर भी मजबूत हो Zerubbabel, saith the Lord, and be strong, Joshua son of Josedek, the high priest, and be strong, all ye people of the land, saith the Lord, and work, for I am with you, saith the Lord of hosts. प्रभु यहोवा कहता है ये हैकल कुछ भी नहीं जो पहले बनाई गई थी, पर मैं तुम्हें अपना कलाम देता हूँ, तुम मजबूत हो जाओ, खड़े हो जाओ और मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। According to the word that I covenanted with you when he came out of Egypt, उस कलाम पे लौट जाओ, उस वाचा पे लौट जाओ जो मैंने तुम्हारे साथ बांधी जब मैं तुम्हें मिस्र से छुड़ा के लाया। तुमने उस वाचा को तोड़ा है, तुमने उस वाचा, उस प्रतिज्ञा के अनुसार अपना जीवन नहीं बनाया, तुमने उस वाचा को अपने पांव के नीचे रोंदा, मेरे हुक्मों को पांव के नीचे रोंदा, उसी वाचा पे वापस लौट जाओ। सो माय स्पिरिट रिमेनेथ अमंग यू, फियर यू नॉट, तब मेरा रूह तुम्हारे मध्य में रहेगा। फॉर दस सेथ द लॉर्ड ऑफ होस्ट, येट वंस इट इज अ लिटिल वाइल एंड आई विल शेक द हेवंस एंड द अर्थ एंड द सी एंड द ड्राई लैंड एंड आई विल शेक ऑल नेशंस एंड द डिजायर ऑफ ऑल एजेस शैल कम। मैंने इसके ऊपर बुक लिखी है एक, डिज़ायर ऑफ ऑल नेशंस, उसका टाइटल है डिज़ायर ऑफ द एजेस, जो मेरी पीएचडी की डिसर्टेशन है। मैंने पीएचडी एलाबामा यूनिवर्सिटी से की है, यूएस से। दैट वाज माय डिसर्टेशन।
द डिज़ायर ऑफ द एजेस। 7 और 8 वचन के ऊपर पूरी रिसर्च है हिब्रू में, जिसके ऊपर मैंने वो बुक लिखी है। प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु कह रहा है, 9 वचन पढ़ें, द ग्लोरी ऑफ दिस हाउस शैल बी ग्रेटर देन द फॉर्मर। प्रभु कहता है ये जो हैकल बनी है ना, इसका जलाल पहले वाली हैकल के जलाल से मैं बड़ा कर दूंगा। पहले वाली हैकल में जलाल का बादल उतर आया था, जिसे लोगों ने अपनी आँख से देखा था। अब जब ये हैकल यहोवा के लिए मखसूस की गई, इस हैकल में कोई जलाल का बादल नहीं आया। ये हैकल देखने में भी सुंदर नहीं है। इस हैकल में सोना चांदी हीरे मोती जवाहरातों का काम नहीं है, हाथी के दांतों की नक्काशी नहीं है, कीमती जानवर की खालों का काम नहीं है, इसके अंदर बेशकीमती किस्म की एम्ब्रॉयडरी नहीं की गई है, इसके अंदर नगीने नहीं जड़े गए हैं, हीरे मोती नहीं लगे इसके अंदर कीमती लकड़ी नहीं लगी है। साधारण हैकल है। लेकिन यहोवा कहता है इस हैकल को मैं पहले जलाल से ज़्यादा जलाल में भरूंगा। आपको मालूम है भविष्यवाणी यहोवा ने कब पूरी की? इसी हैकल के अंदर प्रभु यीशु मसीह आता है, जो स्वर्ग का जलाल है, स्वर्ग की संपूर्ण महिमा का देहधारी करना है। स्वर्ग की पूरे का पूरा नूर उसकी देह में सिमट के पृथ्वी पर उतर आया है। वो इस हैकल में आके कलाम सिखाता है। हालेलुया। तो ये जो वचन है इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। ये बहुत गहरा वचन है। क्या क्या यहाँ पे घट रहा है मैं आपको बताता हूँ। हज्जई नबी इन्हें कलाम दे रहा है। किन्हें? एजरा को, नहेमिया को और जरूब्बाबिल को। तो मैं आपको बताता हूँ, परमेश्वर की बातों को समझने के लिए आपको आत्मा में जाना पड़ेगा। आत्मा की दुनिया में जब ये हैकल बनाई जा रही है ना, तो वैरी हैं, सनबलाट है, तोबिया द हॉर्नाइट है और अरबी लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। तो जरूब्बाबिल को यहोवा कलाम भेजता है कि बल से मत लड़ अपने, ना बल से ना ताकत से, मेरे रूह की इंतज़ारी कर, मेरा रूह ये काम कर। जो काम प्रभु ने आपको करने के लिए बुलाया है, परमेश्वर आपको वो परमेश्वर आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप अपनी ताकत में वो काम करो। परमेश्वर चाहता है कि आप यहोवा की ताकत लो, यहोवा की सामर्थ लो, यहोवा के बल से यहोवा का काम होगा। हमारी शारीरिक शक्ति से, शारीरिक बल से नहीं होगा वो काम। हमें यहोवा की सामर्थ चाहिए उस काम के लिए। तो इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 12 वचन हम पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है, हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। हालांकि एजरा, नहेमिया और जरूब्बाबिल को सनबलाट जो गवर्नर है और तोबिया हॉर्नाइट और अरबी लोग वैरी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो विरोध कर रहे हैं। वो दीवार नहीं बनने दे रहे, हैकल नहीं बनने दे रहे। लेकिन असली लड़ाई कहाँ पे है? इफिसियों 6 की 12 पढ़िएगा। प्रधानताएं, हुकूमतें, इख्तियार और शैतानी सेनाएं जो आसमानी मकामों में हैं। स्वर्ग से जो ऊपर घट रहा है उसका रिजल्ट पृथ्वी पे आ रहा है। ऊपर जो चल रहा है ना, ऊपर की दुनिया में एक ऊपर दुनिया है, सेकंड हेवन, जहाँ पे ये ताकतें हैं। एक उसके ऊपर है जहाँ पे हमारा पिता विराजमान है सिंहासन पे। लेकिन इसके बीच की जो दुनिया है शैतानी, वहाँ पे क्या चल रहा है और स्वर्ग में क्या चल रहा है, इन दोनों दुनिया का इल्म चाहिए खुदा के खादम को। खुदा का नबी वो है जो इन दोनों दुनिया को देख सकता है, इन दोनों दुनिया को देखता है, फिर बोलता है। उसे भविष्यवाणी कहते हैं। नबियों को बाइबल में सीयर कहा जाता है। सीयर का मतलब जो देखता है आत्मा की दुनिया में। तो हज्जई नबी क्या कर रहा है? हज्जई और जकरिया दोनों के विषय में मैं आपको बताऊंगा। एक फिर हम सेशन करेंगे थोड़ी देर के बाद, मैं बता दूंगा उसके विषय में। फिर हम इस वचन को आगे लेके चलेंगे। हज्जई नबी की जो नबूवत है, हज्जई टाइम में नबूवत कर रहा है, समय के अंदर। लेकिन जकरिया नबी को हम देखेंगे, वो टाइम और स्पेस से बियॉन्ड कर रहा है। एक नबी ज़मीन को देख रहा है, एक नबी स्वर्ग में देख रहा है। दोनों नबी हैं एक ही समय, हज्जई और जकरिया। तो हम बाद में लौटेंगे और फिर हम इस वचन को और आगे लेके चलेंगे। तो सभी इकट्ठे हो जाइएगा। कुछ
कुछ घंटों के बाद मैं फिर लौटता हूँ। प्रभु यीशु आप सबको बड़ी आशीष दे। और मैं उपवास में प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं बातें बताना नहीं चाहता, लेकिन जो मेरे संग उपवास में जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ें 3 डेज़ फास्टिंग के लिए। इट ऑलरेडी स्टार्टेड और कल ख़त्म हो जाएगी। तो प्रार्थना में मेरे संग जुड़िएगा जो जुड़ना चाहते हैं प्रार्थना में। हालेलुया। और आत्मा की ओर चलें, शरीर की ओर नहीं, रूह की ओर चलें और रूह की खोज करें, रूह के पीछे भागें और आसमानी चीज़ों को देखने की कोशिश करें, स्वर्गीय चीज़ों को। आपके जीवन में जो घट रहा है ना, वो इसलिए घट रहा है क्योंकि ऊपर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इफिसियों 6:12 में पढ़ लीजिएगा। फिर मिलते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बड़ी आशीष दे। सबको जय मसीह की।